Today we are going to start with the procedure of selection. Now in the sources of recruitment you will be having two sources. यानी कि अगर आपके पास question आता है, if you have the question in the boards, you may be asked identify the source of recruitment the company has used. Now when it comes sources, तो sources का मतलब हो जाता है either it can be external or it can be internal. So if you have been asked the question identify the source, तो आपको internal और external and जो उसके अंदर आपका सब point है, मतलब आपका placement agency है, तो you have to write that it is placement agency and this is external source. Now in the second one comes a selection. And selection is a process. मतलब आपके प्रोसेस का मतलब क्या है? There are number of steps. There might be a series of tests. Like most of the companies, सब मतलब मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं, सबसे पहले वो चलती हैं आपको जो है they would be, जो हमने सबसे पहले लिया था, that is they would ask you to apply. आपको अप्लाई करने के लिए बोलेगी. Right now you have applied for the job. Now it depends on a company's policies. This depends on a company's policies कि वो किस तरीके का टेस्ट रखते हैं. For some levels there is written as well as interviews, and for some there might be only interviews, and in some they may even ask you to give your outputs for 1 or 2 days. For example, in the schools, when we are applying, most of the schools in the private sectors, I'm not talking about a government. In the private sectors, what happens is you are given 2 days. आपको दिखाना पड़ता है कि आप कितना कर सकते हो. So every company, organization has their own policies of test. अब मुझे कैसे पता होगा? मेरे पास तो आई एम हैविंग ओनली द बायोडाटा. अब बायोडाटा में तो आपके 80% है, 90% है, बट आर यू एक्चुअली एबल टू हैंडल द सिचुएशन? दैट इज ओनली द टेस्ट दैट कैन टेल यू. So that is why selection is a process and it is a negative process, because we have to eliminate those who are incapable. एंड जो केपेबल है उनको हम सेकेंड राउंड पर लेकर जाते हैं. Selection is the process of identifying and choosing the best person out of number of prospective candidates for a job. When a company is giving its advertisement, number of people will be applying. There would be people who may not be even qualifying for the job, then also they would apply. And when it is a campus placement, there they don't advertise, but जो selection वाला process है वो चलता है. Because campus placement आपका maximum मैनेजमेंट कैटेगरी के लिए जाता है, वेरएज हम जो पढ़ रहे हैं हम हर एक कैटेगरी के लिए पढ़ रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट इवन द सिलेक्शन ऑफ अ मैनेजरियल, इवन फॉर द वर्कर एंड ऑल्सो फॉर द अपर लेवल. तीनों लेवल में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल. Towards this purpose, the candidates are required to take a series of tests and interviews. एंड यही इंटरव्यूज होते हैं, जॉब इंटरव्यूज, जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं. At every stage, many are eliminated and few move on the next. And that is why I said that selection is called as a negative process. This comes in the paper. The process may start right from the screening of applications. Means, as I said, that number of candidates would be, even those who are not even eligible will be applying. मतलब अगर उसमें लिखा भी हुआ है ओनली बीएससी कैंडिडेट्स, फिर भी बीबीए वाले भी करेंगे. चलो करके देखते हैं, हो सकता है. देन इट विल कंटिन्यू इवन आफ्टर ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्टेंस एंड ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट.
because like any other managerial decision involves judgment about the performance potentials of the candidate. The effectiveness of the selection process would ultimately be tested when it is on the job of chosen person. As I said, कि आप कैसे किसी को जान सकते हो with the with the biodata, with the curriculum which we can get on record with giving up to a good money. किसी से भी हम लिखवा सकते हैं, किसी से भी लिखवा सकते हैं. In the on the Google platform you have people who specifically write. अभी right now also while I was logging on to your screen, so one of my counselee, he was asking me, my UK university में I'm going to apply, so just give me the SOPs, that is the study of purpose, and this can be done by giving money. तो कोई भी CV लिख सकता है, बट काम कैसे हम करते हैं, that is only we can analyze when the person actually starts working. That is why there is a period called probation. I don't know how many of you are aware about that. There is a period called probation. That's there in government as well as in private sectors both. Probation का मतलब हो जाता है you are under observation for a certain period. That depends from companies. किसी किसी कंपनी में 6 months का प्रोबेशन होता है, तो किसी किसी कंपनी में 1 year का प्रोबेशन होता है. एंड यू नो प्रोबेशन पीरियड इज द वर्स्ट पीरियड ऑफ एनी पर्सन's life. That's the worst time because during that 1 year or 6 months you are under scrutiny, you are under the camera. आप पर लेंस लगा रहता है, आप कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे. यू कैन नॉट टेक हॉलीडेज, द नॉर्मल हॉलीडेज आर नॉट अप्लाइड टू यू. देर आर सो मेनी benefits that would not be given to you. And above all, that period is a period जब अगर आपको लगता है कि I don't want to continue with this job, you can immediately back off. And company को लगता है that the person is not capable, उसको within 1 day notice निकाल सकते हैं. Otherwise once you are permanent, फिर आपको जो है notice period serve करना पड़ता है. So that is why यहाँ पर जो last में लिखा हुआ है ना, the effectiveness of the selection process would ultimately be tested in terms of on the job. तो तब आपका देखा जाता है. Now the very first, ये आपके प्रोसेस के प्रिलिम जो मतलब कि स्टेप्स हैं, काइंडली लर्न देम इन सीक्वेंस. प्रिलिमिनरी, ये आपका it helps the manager to eliminate unqualified or unfit job seekers based on the information supplied by application forms. As I said, that sometimes it might be written experience needed 5 years, लेकिन एक फ्रेशर भी अप्लाई कर देगा. अरे देखते हैं यार क्या हो जाएगा, हो सकता है मुझे मिल जाए. So that those applications will be first of all lensed off, उनको हटा दिया जाएगा. Preliminary interview helps reject misfits for reasons which did not appear in the application forms. Number of, maybe that particular post is only for a particular, जैसे receptionist में normally most of the companies prefer women. लिखा भी हुआ है कि we want female, लेकिन मेल ने अप्लाई कर रखा है. मिनिमम ग्रेजुएशन लिखा है, 12th पास ने अप्लाई कर रखा है. तो देयर माइट बी, तो दे वुड एलिमिनेट. यानी कि आपके पास अभी 50 एप्लीकेशंस थे, यू हैव एलिमिनेटेड द 40 विच आर नॉट फॉर अनफिट. सेकेंड, selection test. Please remember them. Selection test can be a paper and pencil test, or as I said, there might be something related to. There might be something related to like एक वर्कर होता है या फिर स्किल्ड लेबर्स होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनको जो है दे मे बी आस्क्ड टू वर्क ऑन दैट. दैट इज सिलेक्शन टेस्ट. फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द सिलेक्शन टेस्ट इज द एग्जाम दैट यू गिव. दैट LDC या UDC का आप देते हो, जो SSC का एग्जाम आप लोग बोलते हैं, यू कॉल इट एज स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एंड दैट यू कैन गिव इवन आफ्टर 12th standard. बट
I would personally tell that you should never give it after 12th standard. Once you clear your graduation, then you should go for such um, employment. But आप 12th standard के बाद देते हो LDC का, that is lower division clerk. So आपको जो है you will be having the paper and pen test, just like the OMR sheet which you have given for your first term. आपने जो फर्स्ट टर्म में दिया ना, बिल्कुल वैसा ही होता है. इट हैज़ ऑल दोज 4 कंपोनेंट्स जो आपके अब आएंगे टेस्टों में, यानी कि व्हेन यू विल बी गिविंग योर टेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स. कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज इंग्लिश आपका होगा. देन क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव आपका होता है. तो इस तरीके के टेस्ट होते हैं. एंड इन द कंपनीज इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज पॉलिसीज. These characteristics range from aptitude, such as manual dexterity, to intelligence to personality. Now let us first take what are the tests under selection test. Please, अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा. इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि दिस इज द मोस्ट important psychological test to measure the level of IQ. अब आपके IQs आपके अलग अलग होते हैं. You can be having the verbal ability test, you can be having the learning ability test, you may be having the ability to make the decision or judgment. In some companies, the ability test or the intelligence test are even oral. In the private companies, normally what will they do is they will be giving you a situation. आपसे situations पूछेंगे. That is based on your mental ability. Intelligence, mental ability, intelligence quotient, learning ability. Second is aptitude. It's measure of individual pressure for learning new skills. मतलब आपका कितना aptitude रहता है. This are the good indices. Indices मतलब they are the scores. मतलब ये आपको जो है pointers है कि आप आगे कितना कर सकते हो on a given platform. What is your persona? आपका persona क्या है? आपका aptitude कितना है चीजों को. देखो, aptitude आपका तभी होगा जब आपके पास उस चीज के लिए एक इंटरेस्ट होगा. जब आपको उस चीजों को, अब मान लो आप इंजीनियर हो. लेट अस कम टू द पॉइंट कि आप इंजीनियर हो. अब इंजीनियरिंग तो आपका जो है दैट वाज योर व्हाट वी कॉल एज सिलेबस बेस्ड. आपने कुछ लर्न किया था और आपको जो है यू हैव गॉट द सर्टिफिकेट, यू हैव गॉट द डिग्री. बट आगे आगे उस चीज को आपने करना है, तो दैट वुड बी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट लेवल. इवन जो मेरा मतलब कि मैं आप लोगों को बार बार, यू माइट हैव सीन माय स्टेटस आल्सो, आई एम पुटिंग माय काउंसलिंग आल्सो. उसके अंदर भी हम यही लेते हैं. उसके अंदर भी हम यही लेते हैं. वी टेक 3 बेस हम लोग लेते हैं. उसके अंदर यही होता है. द वेरी फर्स्ट इज एप्टीट्यूड, द सेकेंड वन इज योर स्किल्स एंड थर्ड वन इज योर इंटरेस्ट. एंड उसके बेसिस पर हम आपको बताते हैं दैट ओवर अ पीरियड, मतलब कि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो MBA करते हैं. देन व्हाट हैपेंस इज, देन आफ्टर 3 years they say मैम वी आर बोर्ड. मैम ये MBA हमारे लिए बना ही नहीं था. एंड इज दिस रियलिटी, दिस आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ रियलिटी. और अभी वन मंथ पहले मेरे साथ हुआ था. दे सेड मैम, मैंने कहा रिशांक यू आर डन रियल, अब क्या कर रहे हो? मैम आई एम वर्किंग अंडर अ फोटोग्राफर, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ. मैंने कहा फोटोग्राफर, बट यू आर एन MBA फ्रॉम IP. यस मैम, मैंने 2 साल काम किया था मैम, मुझे मज़ा ही नहीं आया. तो बिकॉज वी डोंट नो व्हाट आर आवर इंटरेस्ट हमारा ओवर द पीरियड डेवलप होता है और डिक्रीज भी होता है. इसीलिए कंपनीज में दे टेक दिस एप्टीट्यूड कि आगे आने वाले टाइम में आप कितने रेडी हो टू लर्न द न्यू स्किल्स. थर्ड, पर्सनालिटी. पर्सनालिटी मीन्स आपके रिएक्शंस.
आई हैव बीन गिविंग दिस एग्जाम्पल कि बड़े बहुत ही ज्यादा वियर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे पर्सनालिटी, एंड दिस कैन बी बोथ रिटन और ओरल। एंड रिटर्न के अंदर आपका ये नहीं कि यू हैव टू राइट अ लेटर और यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ, इट इज ऑल बेस्ड ऑन द सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। बट यू मे बी आस्क्ड, लाइक मेरी जब मतलब कि वेल आई वाज डूइंग दैट, तो क्वेश्चन था कि हाउ मच यू हैव द वैल्यू सिस्टम, मतलब आप जो हो वैल्यूज को मानते हो या वैल्यूज को नहीं मानते। तो मेरा मैंने जो भी आंसर्स लिखे हुए थे उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज को नहीं मानती। तो मतलब मेरा जो रिजल्ट आया, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि बट मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं तो वैल्यू मतलब कि मैं तो उस तरीके से तो आई एम वेरी मच तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक बात बताओ, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था तो आपने ये आंसर्स दिए थे। मैंने कहा यस। होता क्या है कि वाई आई वॉज वैल्यू, मतलब मेरा था आई ऑलवेज बिलीव इन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। मतलब मैं ये पुराना वो जो होता ना कि नहीं नहीं, अब जैसे कल मेरी डॉटर का बर्थडे था बट शी वॉजंट हियर। अब हम वो पहले होता है पेरेंट्स का होता है नहीं नहीं नहीं, मतलब कि ये अगर ये चीज़ है तो तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। मतलब कि तुम जैसे मैं जब मेरी शादी हुई थी तो माई मदर इन लॉ वॉज हार्डली, नहीं मतलब मेरी मदर इन लॉ बड़ी थी, शी वॉज 60+, बट उनका ये होता था घर में बहू आ गई है तो घर के काम को बहू को करना चाहिए। दिस इज वन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू अबाउट द पर्सनैलिटी। आई एम सॉरी आई डोंट हैव मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम अदर्स, सो आई टेक अप द एग्जाम्पल्स। और मुझे लगता है जब बुराई करनी तो मेरी कर लेने ज़्यादा भी अच्छा होता। 1 मिनट संभव, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल प्लीज। अब उनका क्या था कि सी मेरा तो कोई मतलब कि मेरी बहुएं तो काम मतलब कि मेरा साथ नहीं देते। नाउ आई वाज स्टेइंग इन दिल्ली, हाउ कैन आई गो टू चेन्नई फॉर एवरी सेकेंड वर्क, एंड आई वाज वर्किंग टू। तो आई यूज टू टेल कि ऐसा भी, और मतलब कई बार मैं कोई वीडियो भी देखती हूँ ना तो मेरा हमेशा कमेंट होता है कि वाई डज इट पुट कि एक 22 साल की मदर है, मतलब मेरी भी बेटी 22 साल की है, मेरा अगर बेटा होता उसकी शादी हो जाती तो क्या जरूरी है कि मेरी बहू आकर मेरे को मतलब कि करे? क्या मैं उठ के काम नहीं कर सकती हूँ? मैं इतनी थोड़ी मतलब की हो गई हूँ, ठीक है यार मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, बट दैट डजंट मीन दैट आई कांट वर्क। उसके आने से पहले भी तो मैं काम करती थी ना। अब कल को बाय चांस की बात है कि मेरे बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, तो शुड आई मेक दिस मतलब कि मेरे को ऐसे फ्राउनिंग फेस बनाना चाहिए? नो नो, मेरी बहू आ गई है तो मुझे उसे उठ के खाना। मतलब देयर आई ऑन द एफबी आल्सो आई सी मेनी वो कि हमें तो यही नसीब में मिला था। भाई अगर हमारे हाथ पैर है तो काम करने में कोई बुरी बात नहीं है। तो आई डोंट वैल्यू दो सिस्टम्स, आई वैल्यू कि आप अपना काम करते रहो, इवन इफ शी कम्स, अगर मेरी एक बहू है तो क्या हुआ, मेरी डॉटर जो दोनों है उसी की जैसे वो भी एक होगी। आई गिव द सेम प्रिविलेज टू माई सिस्टर सन, जब वो यहाँ रहता था पहले, आदि कृतिका को अच्छे से पता है। आई गिव द सेम प्रिविलेज टू माई, हमारी जो छोटी सी डॉग है नोनी, वो सारा दिन मेरी गोद में बैठी रहती है। शी वुड डू ओनली वॉट आई से, शी वुड नॉट डू एनीथिंग अदर देन इट्स। कुछ भी कोई भी बोल देगा बेटा ये काम कर दो तो वो नहीं करेगी। मैं बोलूंगी ना नोनी उठो बेटा 5 मिनट के लिए मैं भी आ रही हूँ, आप उधर चल के बैठ जाओ, उठ के बैठ जाएगी। मैं उसको भी उतना ही प्रिविलेज देती हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है आई डोंट वैल्यू द सिस्टम का मतलब ये है कि आई डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। सिस्टम में कहा हुआ कि अगर मेरे बच्चे की शादी हो गई तो आई हैव बिकम ओल्ड, तो मैं ऐसा नहीं मानती। I will become old when I will not be able to work on my own. And just because someone has got married, तो उसका मतलब ये नहीं कि I have to make him or her work. That is value system. तो दिस इज वॉट आई वॉज टेलिंग कि मुझे एकदम लगा, मैंने कहा मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो देन दे सेड कि इट इज नॉट अबाउट ऑनेस्टी, पर्सनालिटी इज नॉट अबाउट ऑनेस्टी, इट इज अबाउट रिएक्शन टू एनी सिचुएशन, कि आप उन सिचुएशंस को कैसे, आप वही पुराना वो मानते हो कि नहीं मेरे को तो ऐसा ही चाहिए,
तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानती. इट्स ओके, अकॉर्डिंग टू टाइम वी नीड टू चेंज सर्टेन थिंग्स. तो पर्सनालिटी में आपसे पूछा जाएगा अबाउट हाउ यू आर स्टिक टू द सिस्टम्स. इमोशंस आपके, आपने देखा होगा ना वो जो आपके व्हाट ऑल दीज जो शोज आते हैं, उसके अंदर एक पीछे से एक राउंड होता है जो एक रोना धोना शुरू कर देते हैं, द रियलिटी शोज. तो हाउ डू यू रिएक्ट टू सर्टन सिचुएशंस? यू मे बी आस्क्ड. एक क्वेश्चन था विच वाज देयर इन MBA इंटरव्यू, एंड बहुत कॉमन है, एंड इट्स ऑल, मतलब उसका मीम भी बहुत बना हुआ है. द बॉस ऑन द, मतलब कि उसमें उसने पूछा कि मान लो कि मैं तुम्हारी बहन को लेकर भाग जाऊंगा, तो तुम क्या करोगे? अब नेचुरल है कि एक रियल ब्रदर का खून खौल उठेगा कि मैं तुम्हारे बहन को जबरदस्ती भगा के लेकर जा रहा हूं. नेचुरल है कि द फर्स्ट थिंग वुड बी, उठाओ यहां से वेट और उठा के मारो. हाउ डेयर यू टॉक अबाउट माई सिस्टर लाइक दैट. सामने बैठे वाले इंसान ने बोला, मुझे सर आपसे अच्छा दूल्हा तो मिलेगा ही नहीं. तो मतलब आप उस वक्त में, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, दैट वाज हाउ यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन. पर्सनालिटी विल इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स. आपका इमोशन कैसा जा रहा है, आपकी मेच्योरिटी कितनी है. व्हाट हैपेंस इज इन सम ऑफ द कंपनीज व्हाट दे वुड डू इज, देखेंगे 4-5 जने बैठे हुए हैं, एक मतलब यू कैन सी ऐसे वीडियोस होते हैं, आई डोंट नो, बट हमें तो हमारे उसमें मिलता रहता है काउंसलिंग में. एक वीडियो था, उसके अंदर क्या था कि 4 जने बैठे हुए हैं, दे हैव कम फॉर द इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट, एंड ऑल ऑफ देम आर वेटिंग. सडनली एक मतलब कि बूढ़ा सा इंसान आता है, एंड ही आस्क, मतलब ही इज पुशिंग समथिंग, एंड ही आस्क दोज 4 कैंडिडेट्स कि प्लीज हेल्प कर दो. नाउ ऑल द कैंडिडेट्स आर वेल ड्रेस्ड अप, तो जैसे अबे जा, हम क्या यहाँ पर तेरे साथ कूली का काम करने के लिए आए हुए हैं. अनदर, द हीरो एंटर्स एंड ही सेज कि वो देखता है, वो कहता है अच्छा मैं आपका काम करता हूँ. वरुण प्रुति का है ये सारे, मतलब कि दिस इज वन आई फॉलो. ही हेल्प्स इन. लेटर ऑन द इंटरव्यूअर अनाउंसेस दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड. नाउ ये जो पांचों होते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ दे हैव बीन सिलेक्टेड. तो एक इंसान आता है वेल ड्रेस्ड अप, बट एक्चुअली ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी एज वेल एज वही जो बूढ़ा बन के आया था. दिस इज हाउ कंपनीज टेस्ट योर एबिलिटीज. They may put you into situations, they may ask you the questions. Sometimes मेरे स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, that was in symbiosis का दे रहे थे, they were giving the personality development. In that what happened is, उनको ना शीशा रखा हुआ था, and they all were 5, और 5 मेरे ही स्टूडेंट्स थे. मैंने उनकी BBA की प्रिपरेशन करवाई थी. एक्चुअली उस वक्त में मैं इनकी BBA की प्रिपरेशन करवाती थी. आई हैड अ मैथ्स टीचर जो मैथ्स करवाते थे और मैं बाकी सब्जेक्ट्स लेती थी. So now what happened is, they told me कि मैम हम 8 कैंडिडेट्स थे, एंड एक शीशा लगा हुआ था उस तरफ, जो इंटरव्यू से वो बैठे हुए थे और हम लोग सब बैठे हुए थे, एंड दे वर ऑब्जर्विंग ये लोग आपस में कैसे बातें कर रहे हैं. अब आपको पता है देर आर पीपल जो अपनी इंग्लिश की बहुत वो करते हैं, दे ओनली स्पीक इन इंग्लिश, दे वॉक इन इंग्लिश, दे टॉक इन इंग्लिश, दे इवन लॉफ इन इंग्लिश, एंड देर आर स्टूडेंट्स हु आर सिंपल, दे डोंट exhibit. अब इन्होंने क्या किया, द स्टूडेंट्स हु वर ट्राइंग टू ओवर पावर अदर्स, उनको मतलब कि उनके नीचे, और जो बच्चे कुछ बोल नहीं रहे थे उनको लीडर बना दिया. इवन इन द आवर क्लास ऑल्सो, जो सबसे ज्यादा बोलता है उसको चुप रहने की, और जो बोलता ही नहीं है उसको कमेंटेटर का रोल दे देते. दिस इज हाउ दे सी हाउ यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन. दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट, बट दिस हैपन्स in the real jobs. Fourth, trade test. Now trade का मतलब यहाँ पर business नहीं है. This is what I said कि आपका जैसे कि टाइपराइटर पर आपने लिखा है you have applied for the job of computer operator.
तो आपको जो है वो टेक्निकल आता है नहीं. नॉर्मली फॉर द टाइपराइटर्स, टाइपिस्ट और द कंप्यूटर ऑपरेटर्स, यू आर आस्क आपकी स्पीड कितनी है, 40 वर्ड्स पर मिनट. तो आपको जो है एक पेज दे दिया जाता है. 40 वर्ड पर मिनट का मतलब क्या है, 3 मिनट में आपको कितना करना, 120 वर्ड्स विदाउट मिस्टेक्स, और आपका वो स्पीड चेकअप किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड टेस्ट. These tests measures the existing skills of the individual. They measure the level of knowledge and proficiency in the area of their profession or technical training. In aptitude, the former measures the potential to acquire skills. मतलब आप कितना learning ability रहते हो. And trade test में आपके पास actual skills कितने हैं. In Government of India also, if you are applying for the LDCs or UDCs, you are supposed to give the computer test. पहले तो टाइपिंग का होता था, अब कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग होता है. एंड योर मिनिमम आपका होता है 40 वर्ड्स पर मिनट. तो आपको जो है 3 या 4 मिनट में इतने पेजेस करके देने पड़ते हैं विदाउट एनी मिस्टेक्स. मतलब मिस्टेक्स होते हैं बट वो काउंट हो जाते हैं, मिनिमम उतने होने चाहिए. फिफ्थ, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हेन आई एम when we are taking the test in our हम अपने काउंसलिंग में भी लेते हैं, तो we take the interest test. Interest is how every individual has fascination for some job than the other. तो आपकी इंटरेस्ट किस किस में है. इंटरेस्ट का मतलब हो सकता है आपसे जो है यू मे बी आस्क्ड अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, यू आर एन इंजीनियर, यू आर अ MBA ग्रेजुएट, बट आपको इंटरेस्ट तो किसी भी चीज में हो सकता है ना. आपका मूवी में हो सकता है. नाउ मूवी में होने का आपका इंटरेस्ट, आपके उससे क्या मतलब हुआ, मूवी का मतलब हो जाता है क्रिएटिविटी. सो इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इनटू म्यूजिक और यू आर मोर इंटरेस्टेड इनटू समथिंग विच इज क्रिएटिविटी, तो उस चीज को हम हैंडल कर सकते हैं. वी कैन मिक्स एंड मैच दो स्किल्स. हम उन स्किल्स को मैच कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके जो 5 थे ये टेस्ट थे. These were the test. Intellectual test आपका, aptitude test आपका, trait test आपका, personality test आपका, and आपका interest test. These 5 were the test which can be conducted, either it can be oral or it can be conducted over pen and paper. ठीक है, अब आपका टेस्ट का रिजल्ट आ गया. And it depends on company to company. Some of the companies may not even go for any test other than the important employment interview, the most what we call as the difficult part. क्योंकि इंटरव्यू में you interview, there are 2 words here. interview, आपके अंदर झांक कर देखना. In some companies there might be having 2 interviews, preliminary interview and final interviews. In some companies it may be only 1 interview. यानी कि आपसे बात करना, आपके आने का तरीका देखना, आपके बैठने का तरीका देखना, आप अपने बालों को ऐसे से कर रहे हो, आप ऐसे से हिल रहे हो, उन तरीकों को देखना. हाउ यू आर एक्टिंग, देन हाउ यू आर स्पीकिंग. आपसे कोई भी पूछा किसी टॉपिक पर अपने विचार बताओ, सो व्हाट, हाउ टू विच लेंथ यू आर एबल टू स्पीक. हो सकता है यू मे बी आस्क्ड अबाउट योर करंट जॉब, उसके बारे में पूछा, दैट कैन बी देयर, या एवरीथिंग रिलेटेड. नेक्स्ट, अब आपका जॉब हो गया है, यहां तक तो हो गया है. ठीक है, अब ये देखिए यहां पर आई हैव वी विल बी रीडिंग दिस. दैट मीन्स द फर्स्ट, आपका एप्लीकेशन गया, your application has been selected, you have been shortlisted, now you have given the test, and after that you have been called for the interview. Now after the interview, say the company has shortlisted 4 candidates. 4 candidates out of 100 आए थे, हमने 90 को तो खत्म कर दिया है, and 10 थे, 10 में से हमने 4 को कर दिया. अब the next is
आप लोग में से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे हमेशा इंग्लिश में बच्चे पूछते हैं कि मैम व्हाई डू वी राइट द रेफरेंस इन द लास्ट इन द एप्लीकेशन कम बायोडाटा। मैम इसका कोई काम होता है क्या? दिस इज वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन आई हैव हर्ड हमें। यस, इसका काम यहाँ आता है। नाउ यू विल बी गिवन द रेफरेंसेस, यू विल बी गिवन, यू विल बी आपका बैकग्राउंड होता है। The companies are very particular that you should not belong to any criminal background. You should not be having any case impending in the police stations. Your references, आपने जिसका भी reference दिया है वो इंसान जो है he or she should be able to tell about you. हमारे ही इंस्टीट्यूट का इसको पता होगा, मे बी अनुश्री might be knowing, निधि, she was applying for something, तो she had given my reference. Many students give reference देते हैं। तो रेफरेंस में क्या होता है, द कंपनी वेरीफाइज। अब जैसे आई हैड वन चाइल्ड, डोंट उसका नाम क्या, बुरा मत मानना, हिज नेम वॉज पीयूष, नाउ ही इज अ सीए। ही वॉज वेरी नॉटी। नॉटी मतलब नॉटी का अगला नाम ही पीयूष था। मैं अभी जस्ट अपनी डॉटर को यही बता रही थी, एक मतलब कि हर टीचर के पीरियड से पहले वो अंदर से दरवाजा बंद कर देगा। वेरी नॉटी, वेरी नॉटी, नॉटी नॉटी, मतलब नॉटी से भी नॉटीस्ट था वो। तो इन द रेफरेंस चेक ही गेव द नेम ऑफ, उस वक्त में शायद कौन था प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम दिया उसने। तो आई सेड कि व्हाट इज दिस? ही सेड मैम मैं तो उनको जानता हूँ ना, वो अलग बात है कि वो मुझे नहीं जानते। सो दिस इज नॉट इन रेफरेंस। यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द पर्सन जो आपके बारे में सही बताए, वेरीफाई करते हैं वो। It may be your previous employers, your known persons, teachers, university professors. Anyone can act as a reference. This is very important. So when you are giving the references in your biodatas, you need to be very particular कि आप किसका देते हो। पता लगा वो कह देता कि भाई इससे बदमाश तो कोई भी नहीं है, तो we have to be very, तो they check that. Now आपका इंटरव्यू भी हो गया, एंड देन आपका रेफरेंस चेक भी हो गया। नाउ द डिसीजन हैज टू कम, because you have passed the test, you have passed the interview, you have your references have been cut. अब जो concerned manager है, the final decision has to be made from among the candidates who have passed this. He will be able to take the decision कि इनमें से कौन बेस्ट है। Then एक तरफ से आप कह सकते हो that you are now selected. अब in the private companies we don't have a particular examination called medical. इनके क्या होते हैं, they have the on panel doctors. You might have seen, अगर आप लोग सुरक्षा वगैरह से जाते हुए देखेंगे तो लिखा होता है on panel ECI ऐसे करके लिखा होता है। You know what is that? You know what is that? On panel, they have the tie up with these companies. हर कंपनी किसी ना किसी डॉक्टर या किसी ना किसी क्लिनिक या किसी ना किसी हॉस्पिटल के साथ अपना टाई अप कर देती है। एंड देन दे से कि आपको इधर जाना है एंड गो एंड गेट द रूटीन टेस्ट। दिस विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द रूटीन टेस्ट, ऑल योर ब्लड विटल्स, आपके जितने भी ब्लड विटल्स हैं, यानी कि आपका HB, आपका CBC, मतलब एंटायर CBC काउंट आपका, ESR आपका, एनी इलनेस, देन ECG, VCG जो आपके रेगुलर होते हैं, दैट इज डन। दैट इज बिकॉज दे वांट टू एंश्योर दैट अ पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीजेस। आजकल तो कोविड पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी सर्टिफिकेट देना होता है। नाउ इट इज मैंडेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू हैव टू बुक अ टेस्ट एट द गिवन सेंटर, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं वहां आपका टेस्ट होता है। देन द रिजल्ट इज गिवन टू यू आफ्टर 1 week. Once your medical examination is over, then you are given the job offer. Now what is job offer? जॉब ऑफर का मतलब होता है ओनली एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट. दिस इज नॉट ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट.
You have to, the company will give you 1 month 15 days depending on, किसी किसी कंपनी में 10 days का नोटिस होता है, किसी में 15, तो किसी में 1 month का नोटिस होता है. फॉर द हायर पोस्ट नॉर्मली दे गिव 1 month का नोटिस देते हैं. Then they will say that you have to join our company by this date, और उसके लिए you have to give your consent. Once you have accepted the offer, then your documents will be checked. 10th, 12th, grads, postgrads, any kind of diploma or any technical qualifications, सब कुछ आपका जो है attested formation में जाएगा. These are all given. Then you are given the offer of employment, यानी कि contract, जिसमें लिखा होगा based on the application received by you after मतलब कि passing the interview, we are glad to offer you the job. आपका job title, duties, आप कब से आपकी employment start होगी, what will be the probation period, what will be your pay, आपको allowances कितने मिलेंगे, कितने घंटे आपको काम करना है, in case of any holidays, company के rules क्या है. As I said, during the probation there is no rule, but yes, you may be given 1 or 2 casual leaves. Then termination of employment, सारे के सारे जितनी भी आपके होते हैं, these are all given to you. These are very, very difficult situations. And these, you may be thinking that ki ma'am, is it in the real sense? Does it happen? So yes, these things happen. And these things, if you believe me, it happens in such a haphazard that you will not have time to check. क्योंकि इसीलिए हम लोग जब भी अपना CV भरते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, तो वी आर वेरी मच पर्टिकुलर. क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है, यू हैव द स्कीम, जैसे आपसे आधार कार्ड मांग ले तो आपका पता है कि आपका पता ठिकाना सारा निकाल लेंगे. इन प्राइवेट यू हैव टू बी डबल श्योर, तो दे गो थ्रू सर्टेन फॉर्मेलिटीज मोर. This is how selection is done. This is how selection is done. Right? अब हम लोगों ने कितने स्टेप्स पढ़ लिए हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्टाफिंग. देन स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट पढ़ा. रिक्रूटमेंट में हमने दोनों सोर्सेस पढ़ लिए. देन सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था द टेस्ट. प्रिलिमिनरी के बाद जो सेकेंडरी होता है उनमें टेस्ट. ये 4 टेस्ट आपके पेपर में दे में कम एज आइडेंटिफाइंग, और यू मे बी गिवन अ केस स्टडी टू आइडेंटिफाई. या आपसे ये पूछा जाएगा कि द टेस्ट विच के मतलब कि विच एनालाइजेस योर दिस, तो आपको वो बताना है. सो दैट इन दैट इस तरीके से हो सकता है. एंड इन द सिलेक्शन दीज 4 मतलब कि आपके जो भी आपका प्रोसेस है वो पूछा जाएगा. राइट नाउ यू आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी. अब आप कंपनी के अंदर घुस गए हो. यू आर नाउ पार्ट ऑफ द कंपनी. बट देर आर टाइम्स when you may not be having the knowledge about the work you are going to do. You are applying for the job, लेकिन आपके पास experience कहाँ है. Now experience is actually internship. और आजकल मोस्ट ऑफ द हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, दे आर ऑल इंटर्नशिप बेस्ड. And if it is not based, then also the students, I definitely tell everyone कि आप लोग internship किया करो आप लोग, चाहे आपको पैसा ना भी मिले तो भी करो, because internship will be adding to the experiences. Now, when you enter into the company, you may or may not be knowing about the company's way of working. तो आपको दी जाती है ट्रेनिंग. The training may be different for different levels. The training may be different for different levels. For example, जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं उनको जो है दे मे बी गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ अबाउट वर्किंग ऑन द मशीन्स.
For the managerial grades or for the executives, they may be post under an intern. उनको intern की तरह थोड़े टाइम के लिए या फिर एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी आपको काम करने के लिए बोला जाता है, जिस दौरान आप उस काम को सीख जाते हो. In some companies you have orientation. अगर बल्क में लोग आए हैं तो ओरिएंट करवाते हैं उनको, जो है 2 दिन 3 दिन, कि व्हाट आर द, मतलब दैट वुड बी ऑन अ लार्ज प्रोजेक्टर, दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, दे विल इंट्रोड्यूस टू द और उसमें आपको और आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ में एक मेल जोल प्लेटफॉर्म देते हैं. सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दैट डिपेंड्स. ओरिएंटेशन होगा आपका, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होगी आपकी, या फिर आपकी इंटर्नशिप होगी या अप्रेंटिसशिप होगी. दैट डिपेंड्स. अप्रेंटिसशिप हमारे जो है वी डोंट हैव फॉर द मैनेजरियल ग्रेड्स. दैट इज ओनली फॉर द पीपल हु आर इन द स्किल्ड लेबर, जैसे आपके प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स. वो लोग क्या करते हैं, आप कभी किसी भी इलेक्ट्रिशियन को ध्यान करना, वो कभी भी पढ़ लिख कर इलेक्ट्रिशियन नहीं बनता है. उसने अपने घर में 2-4 वायर ठीक किए होंगे, धीरे 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 वो सीख जाता है. उसके बाद उसके जो नीचे काम कर रहा होता छोटू, वो उसके साथ में होता, ओ छोटू ये वाला देना, ये देना, वो देना, ऐसे सिखाते सिखाते वो सीख जाता. So we have the apprenticeship training, we have the vestibule training, we have the internship training, and we also have the orientation. If you wish to plan for a year, sow seeds. If you wish to plan for 10 years, plant trees. If you wish to plan for a lifetime, develop people. आपको ये वाला पूरा कोटेशन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट है. This is when you are training and developing people, then only your company is going to survive. So it is to improve the current and future employees' performance by increasing their ability to perform through learning, usually by changing the employee's attitude or increasing his or her skills and knowledge. Training जो होती है, that is normally for everyone, and most of the time it is in the middle and supervisory, whereas development is actually for the managers. When jobs were simple, it was easy to learn. थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हुआ, ठीक है, people could alter their skills. But अब every second we are having one or the other inventions. In fact, we can say we are living in a sophisticated and complex society. Companies को भी अपने organization को जो है change करते रहना पड़ता. What we call as business environment is dynamic. तो the types of job, the skills we require is also important. और इसीलिए उसके लिए अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई स्किल्स इंपॉर्टेंट है तो हमने चलो ठीक है भाई अब आप जाओ, अब आपके पास ये स्किल नहीं है हम दूसरे को लेकर आते हैं. दिस कैन नॉट बी डन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है हम उनको जो है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 10 years बैक व्हाट हैपेंड इज, अभी तो पाइथन इज in the many of the companies had shifted their platform from window to I think explorer था उस वक्त में, उसके बाद उन्होंने उसमें चेंज किया था. then there were many areas जहां उनको shift over करना पड़ा था. तो how will the employees, ये तो चलो पीछे से IT डिपार्टमेंट में सब कुछ चेंज कर दिया, but how will the people work? For that the training is provided. Like जब 10 years back ERP वाला जो सिस्टम था वो इश्यू हुआ, मतलब कि वो हुआ था हमारे स्कूल्स में कि थ्रू द ERP we will be sending all the what we call as the details to the parents. पहले हमें नहीं आता, हम नहीं करते थे, बट ERP सिस्टम के थ्रू जैसे ही बच्चा एब्सेंट हुआ इमीडिएटली हम यहाँ एंटर करते थे और पेरेंट्स के पास पहुंच जाता था. सो ERP सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, बट हमें क्या पता था व्हाट इज ERP.
तो वी वर गिवन द ट्रेनिंग कि हमें बच्चों को कैसे, मतलब कि हाउ वी विल बी टेकिंग केयर। अब ईआरपी के बाद देन आपका जो है, देन द सिस्टम आया आपका, जो उसका नाम क्या, डेटा रखने का। और अभी जो है दे आर हैविंग द सिस्टम ऑफ ऑनलाइन। तो एवरी टाइम, वेदर ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस और वेदर ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, आपकी चेंज होती। और द एम्प्लॉयज आर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग सो दैट दे आर एबल टू अडेप्ट। कुछ को तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए, पढ़ने के लिए भेजा जाता है। some of the employees are sent, but others, वो इंसान आने के बाद जो है, that person जो है, he would be training the others so that the work is efficiently completed.